بسم الله الرحمن الرحيم. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना व ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। आमीन। चलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। So welcome to our new lesson. और इंशाल्लाह टुडे जो है वो सेम वे दैट वी डू, we'll just do a review of previous lesson first and then we'll learn our new lesson, passive present tense or फ़ेल मुदारे मजहूल. We'll do some practice and then exercise and homework inshallah. Okay, before we start, just remember these three things. The language you are learning is beautiful, enjoy it. It is the language of Allah's beloved sallallahu alaihi wasallam. To love it as you love him and learn it with the intention of keeping his sunnah alive. It is the language Allah chose for his final revelation. Let it bring you closer to him, inshallah. All right, so let's do the review first. And then as लास्ट वीक हमने जो है वो थर्ड हमारा स्केल था पैसिव पास्ट टेंस, जिसको हमने जो है वो स्केल नंबर 3 कहा था, अल फेलुल मादी मजहूल. Right? Majhul means where the doer is unknown. Right? So al fi'l madi majhul refers to passive past tense when we don't know the doer or the file. So use when the doer or file is unknown or irrelevant. All right. So active or you can say ma'lum, like fi'l madi ma'lum was our first scale, then fi'l mudari ma'lum was our second scale. In both cases, we know the doer. The doer was known and was relevant. And then fi'l madi majhul. The majhul is for passive. And then fi'l mudari majhul will be our today's topic, inshallah. So in both cases, like majhul, when the doer is unknown, when you don't know the file, who did the action, when you don't know it. So for Madi, we know how to form it. It's simple, like we just need to change the vowel pattern. That's it. Nothing else, like no added letter, nothing. We just change the vowel pattern. And for, as we are learning the 3-letter words right now, like trilateral or sulasi or mujarrad. So for trilateral verbs, what we do, the fa kalma, harkat of the fa kalma or first vowel, we change it to, we put dhamma on it, like u. And the second, like ain kalma, we put kasra on it, like E. So main, let's say if you have fa'ala, right? So fa'ala is our main pattern for fi'l al-madi ma'loom, right? This is for ma'loom. And to make it majhul, fa kalma would get tamma and then ayn kalma would get kasra. So fa'ala becomes fu'ila. Kataba becomes kutiba. So that's how I make majhul. So like kataba means he wrote, and kutiba means like was written. Like something was written. But who wrote it? We don't know. Right? So doer is unknown. So fa'ala becomes fu'ila. So that was our fi'lul madi majhul. And then another sentence structure to make it passive, like the object of the active voice sentence becomes subject. So that's the main thing, right? जो object, जो active voice का जो object है वो subject बन जाता है. So like kataba talibu ad-darsa. So here we know kataba, it's a fa'ala pattern, so it's ma'lum. And when we say it's ma'lum, that means the word with the rafa status would be a doer or file. तो ये आपका file है, right? क्योंकि ये हमारा मालूम verb है, मादी मालूम. So the student wrote the lesson, राइट. सो दिस इज आपकी एक्टिव वॉइस या आपका फेरुल मादी मालूम. नाउ पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका सब्जेक्ट बन जाता है, और जाते बाते डूअर आपका अननोन होता है, तो डूअर विल बी गॉन, डूअर इज अननोन. कुतिबा एंड देन वर्ब फ्रॉम फ़अला यू बिकम फ़ुइला, कतबा यू बिकम कुतिबा. एंड देन जो मफूल है वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा. तो फ्रॉम अदरसा यू बिकम अदरसु. और इसका नाम जो होता है इसको हम कहते हैं कि ये नाइबुल फ़ाइल है. और आपका जो नाइबुल फ़ाइल हो और फाइल दोनों ही रफ़ा स्टेटस में होते हैं. तो यहाँ पे अदरसू इसलिए यहाँ पे क्योंकि ये सब्जेक्ट है, नंबर 1. नंबर 2, आपका ये नाइबुल फ़ाइल है, इसका रोल, तो ये भी आपका रफ़ा स्टेटस में होता है. ठीक है. तो कुतिब अद-दरसु, द लेसन वाज रिटन. नाउ द लेसन वाज रिटन, so it become subject. अच्छा जी.
तो स्केल फिर हमने ये पढ़ा था कि अब जब फोइला जो बन गया ये फाला से फोइला, तो ये पूरा जिस तरह हमारा जो मालूम का स्केल था, लाइक फाला फाला फालू, सेम स्केल पूरा जो 14 जो सीगाज हैं वो भी जो है वो आपका मजहूल भी उसी उसी पैटर्न को फॉलो करता है उसी तरह से। बट द ओनली चेंज वुड बी सेम थिंग, लाइक व्हेन यू मेक इट मजहूल, राइट, यू पुट दम्मा ऑन द फर्स्ट लेटर एंड कसरा ऑन द सेकंड लेटर। तो बिल्कुल उसी तरह वो पूरा पैटर्न या पूरा स्केल भी इसी को फॉलो करेगा। तो लाइक फ़ोइला से फ़ोइला, फ़ोइलू, फ़ोइलत, फ़ोइलत, ऐसे ना इस तरह से आप चलते रहेंगे उसके अंदर बिल्कुल। जो आपका मालूम का जो पैटर्न था वही पैटर्न पूरा मजहूल के लिए भी फॉलो होता है। तो नसरा से नुसीरा पे, नुसीरा से फिर अपना नुसीरा, नुसीरू, नुसीरत, इसे फतिहा, फतिहा, फतिहु, राइट, सेम आपका जो है वो जो 14 सीगाज हैं मजहूल भी उसी पैटर्न को फॉलो करते, जैसे लाइक फ़ाला से फ़ोइला, तो फ़ोइला से फ़ोइला, फ़ोइलू, ठीक है ना। और ये एंड जो है वो आपको उसी तरह से जिस तरह वहाँ था आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो बेसिकली दे रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ जो ये एडिड इन्फॉर्मेशन है, अब ये आपका डूअर नहीं है बेसिकली, क्योंकि ये आपका वर्ब कौन सी है, मजहूल वर्ब है, तो ये आपका डूअर नहीं है। ये जब हम कह रहे हैं कि फ़ुइल तू, ठीक है ना, तो फ़ुइल तू मतलब आई वाज डन अपॉन, ठीक है, यानी कि मुझ पे कुछ किया गया है, मुझ पे कुछ बोल गया, फ़ुइल ना, ठीक है ना, वी वर डन अपॉन, ठीक है ना। तो ये ना अब जो है ये आपके फाइल नहीं, ये सब नाइबुल फाइल हैं। तो ये ख्याल रखिएगा कि अगर आपका जो प्रोनाउन ऐड हुआ हुआ है आखिर में, तो वो आपका अगर वो फर्स्ट लेटर पे दम्मा है और सेकंड पे कसरा है तो वो मजहूल है। और मजहूल में जो आपका जो प्रोनाउन है वो फिर आपका नाइबुल फाइल है, ठीक है? वो फाइल नहीं है आपका, डूअर नहीं है वो आपका, ठीक है। वो आपका सब्जेक्ट है बेसिकली, जो ऑब्जेक्ट जो है इट बिकम्स सब्जेक्ट। लेकिन ये पूरा फॉलो वही पैटर्न करेगा बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। लाइक हियर, लाइक नो सिरना वी वर हेल्प्ड, अब किसने हेल्प की वी डोंट नो, ठीक है, वी वर हेल्प्ड। और यू वन फीमेल वर हेल्प्ड, इस तरह से यू वन मेल वर हेल्प्ड। तो सेम वही पैटर्न, नुसीरा नुसीरा नुसीरू, ठीक है ना, वो सेम वही पैटर्न। तो ये इसमें आपने ख्याल रखना है कि अब ये मजहूल में जो आपके प्रोनाउंस हैं दे आर नॉट फाइल, दे आर नॉट डूअर, दे आर नाइबल फाइल या डन अपॉन। फेरुल मुदारे मजहूल, ठीक है। तो मुदारे हमारी दो तरह की वर्ब होती है मेनली, अगर हम अमर को हटा दें कमांड को, तो फेरुल मुदारे एंड फेरुल मादी। तो उनके पहले हमने मालूम पढ़े थे, लाइक जिसमें डूअर इज़ नोन, और मुदारे का मजहूल बनाना सीखेंगे हम कि मुदारे का मजहूल कैसे बनता है और उसका इस्तेमाल कैसे होता है, ठीक है। यानी कि आपका मुदारे का मजहूल यानी जिसमें डूअर आपका अननोन होगा लेकिन प्रेजेंट में, तो पैसिव प्रेजेंट टेंस अल फेरुल मुदारे मजहूल, ठीक है भाई। तो द पैसिव प्रेजेंट टेंस मींस लाइक अल फेल मुदारे मजहूल रेफर्स टू एक्शंस बीइंग डन, ठीक है ना, क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट या फ्यूचर की, राइट। तो अदर एक्शन इज बीइंग डन और एक्शन विल बी डन विदाउट स्पेसिफाइंग अ डूअर। तो डूअर आपको स्पेसिफाइड नहीं होगा, लेकिन आपको पता चला होगा एक्शन जो है वो अदर एक्शन जो है वो हो रहा होगा लाइक प्रेजेंट में, या एक्शन विल अकर फ्यूचर में। एक्शन क्योंकि मुदारे में आपके दोनों हो जाते हैं शामिल अरबी में, कि चाहे प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो। तो लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा आपका, आपका विदाउट स्पेसिफाइंग अ डूअर विल नो दैट एक्शन इज बीइंग हैपनिंग, समथिंग इज हैपनिंग और समथिंग विल हैपन विदाउट डूअर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उस पर एम्फेसाइज, क्योंकि सब्जेक्ट तो पता ही नहीं है हमें, यानी कि डूअर हमें मालूम ही नहीं है। तो इट मीन्स कि जो आपका सब्जेक्ट है उस पर आपका एम्फेसिस नहीं है, आपका एम्फेसिस ऑब्जेक्ट पे होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट नाउ। तो जब ऐसा होता है तो फिर हम मजहूल की बात करते हैं, ठीक है। तो इट रिमूव द सब्जेक्ट्स एम्फेसिस, बिकॉज सब्जेक्ट है ही नहीं वहाँ पे, तो उस पर एम्फेसिस नहीं होगा। तो इट इज़ फॉर्म बाय एडजस्टिंग, सेम थिंग एज हमने वहाँ देखा था मादी में, कि वही बिल्कुल वॉवल को एडजस्ट करते हुए बनता है ये। कोई एक्स्ट्रा लेटर कुछ नहीं ऐड होता, बस वॉवल्स को एडजस्ट करते हैं। और बल्कि ये और आसान है, क्योंकि फेल आपको याद होगा फेल मुदारे में हमने तीन पैटर्न पढ़े थे। एक तो पढ़ा था यफ़आलू, ठीक है ना, फिर एक यफ़उलू एंड यफ़इलू, राइट, तीन पैटर्न थे। तो मजहूल और आसान है, मजहूल का एक ही पैटर्न है। अच्छा जी, अब बनाएंगे कैसे इसको, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पैसिव प्रेजेंट टेंस। तो डिराइव फ्रॉम एक्टिव, सेम थिंग, जो आपका एक्टिव प्रेजेंट है अगर आपको वो मालूम है तो बहुत ही आराम से इसका पैसिव बना लेंगे। होता क्या है कि आप क्या करते हो, दम्मा इज एडिड टू द फर्स्ट लेटर, लाइक जो आपका जो हर्फुल मुदारे है उस पे, अब चाहे वो या हो, ता हो, अलिफ हो या नून हो, राइट, चार हर्फुल मुदारे होते हैं, राइट। तो आप फर्स्ट लेटर पे आपने दम्मा लगा देनी है। और जो आपका आइन कलमा है या कलमा जो कि लास्ट लेटर से पहले आएगा उस पर आपने फतहा लगा देनी है। अब देखो तीनों केसेस, चाहे वो यफ़अलू हो, यफ़इलू हो, यफ़उलू हो, कोई सा ही पैटर्न हो, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एग्जांपल दूं, आपका है यनसुरु, अब ये आपका दम्मा के साथ है, ठीक है ना। यफ्ताहु, ये कसर फतह के साथ है। यकरुमु, अच्छा यकरुमु तो यंसुरु आ गया। और कौन सा था हमारे पास, यदरिबु,
यदरिबू ये कसरा के साथ है। तो कोई सा भी हो, लाइक चाहे आपका कसरा वाला यफ़इलु है, यदरिबू या यफ़अलु यफ़तहु यनसुरु यफ़उलु, राइट। तो चाहे आपका आइन कलमा पे दम्मा हो, आइन कलमा पे फतह हो, आइन कलमा पे कसरा हो, मालूम में मजहूल में आपका आइन कलमा सिर्फ फतह लेगा। हमेशा फतह होगी आइन कलमा पे मजहूल में, मुदारे मजहूल में, ठीक है। और या जो होगा या ता, जो भी आपका जो पहला लेटर है हरफुल मुदारे, लाइक आइदर या ता आता ही नहीं, राइट, कोई सा भी हो सकता है, आता ही नहीं, इन तीन चारों में से। तो चाहे हमजा अलिफ है, हमजा ता है, या नून है, उस पर दम्मा होगी। और जो आइन कलमा है उस पर हमेशा फतह होगी, चाहे वो एक्टिव में या आपका मालूम के अंदर उस पर फतह थी या कसरत थी या दम्मा था, कुछ भी था, मजहूल में हमेशा आपका आइन कलमा फतह होगी। तो यफ़अलु यफ़अलु यफ़इलु यफ़उलु सबका मजहूल क्या बनेगा, युफ़अलु। ठीक है, तो यनसुरु से युनसरु, यफ्ताहु से युफ्ताहु, यदरिबु से युदरबु। ठीक है, क्लियर। तो आपका जो आइन कलमा है वो हमेशा फतहा लेगा। तो युखलकु, लाइक यखलकु तो हो गया आपका भाई, ही क्रिएटेड, पर युखलकु ही इज बीइंग क्रिएटेड, या ही विल बी क्रिएटेड, राइट, या ही इज क्रिएटेड। युस्माउ, ही इज बीइंग हर्ड, या ही विल बी हर्ड। युज़करु, ही इज बीइंग रिमेंबर्ड, या ही विल बी रिमेंबर्ड, राइट, या ही इज रिमेंबर्ड। तो इस तरह से आप इसकी ट्रांसलेशन ऐसे करेंगे। ठीक है, अब कौन रिमेंबर कर रहा है, वी डोंट नो, राइट, कौन जो है वो हियर कर रहा है, वी डोंट नो। तो डूअर वुड बी अननोन होगा इसके अंदर। ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कॉन्जुगेशन की। तो पहले ये मैं दो तीन एग्जांपल देते हैं, पूरी कॉन्जुगेशन टेबल को भी देखते हैं। तो पैसिव पैसिव प्रेजेंट टेंस कॉन्जुगेशन टेबल। तो जस्ट फ्यू एग्जांपल है, लाइक यफ़अलु, यफ़अलु मीन्स लाइक ही इज डूइंग, ही विल डू। यफ़अलु से क्या बन गया आपका युफ़अलु। ठीक है, आपने दम्मा लगा दी फर्स्ट लेटर पे, और आइन कलम तो खैर है ही फतहा, लेकिन कुछ भी हो सकता है, इस पे दम्मा भी हो सकती है, कसरा भी हो सकती है, तो आपने फतहा लगाना युफ़अलु। ठीक है, तफ़अलु से तुफ़अलु, दे यफ़अलूना युफ़अलूना। ठीक है, आपने ये फर्स्ट लेटर पे आपने दम्मा लगानी है, युफ़अलूना। यफ़अलना युफ़अलना। ठीक है, लेकिन अगर यफ़अलना भी है, लाइक जैसे अब समिया के केस में, समिया यसमाउ नहीं, आपका कौन सा था, यदरिबू, हाँ ठीक है, यदरिबूना। अब अगर यदरिबूना है, राइट, तो भी आपने ध्यान में रखना है कि क्या करना है आपने, ठीक है ना, यदरिबूना। तो युदरबूना कर देंगे आप इसको, युदरबूना, इस पे आपने फतह कर देनी है। तो युदरबूना। ठीक है, क्योंकि आपने बेसिकली जो आपका आइन कलमा है वो फतह लेगा, और जो आपका फर्स्ट लेटर है हरफुल मुदारे वो दम्मा लेगा। तो इस तरह अभी खैर पूरा पैटर्न देख लेंगे इसका। ठीक है, तो लेट्स चेक फुल पैटर्न। ये आ गया पूरा पैटर्न आपका। ठीक है, तो युफ़अलु युफ़अलानी युफ़अलूना, तुफ़अलु तुफ़अलानी युफ़अलना, तुफ़अलु तुफ़अलानी तुफ़अलूना तुफ़अलीना तुफ़अलानी तुफ़अलना, उफ़अलु नुफ़अलु। ठीक है, बिल्कुल सेम वही जो आपका स्केल है, अभी स्केल नंबर 4 है हमारा। तो जो बिल्कुल पूरा स्केल था स्केल नंबर 2, हमारा जो फेल मुदारे एक मालूम का था, या फ़ालू या फ़ालानी, अब हम मजहूल में देख रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह से आपकी एडिशन एंड में सब कुछ वैसी की वैसी है, सिर्फ जो वावल पैटर्न है वो चेंज हुआ है। बाकी डुअर की एडिशन जो थी वो एज इट इज है, अब वो डुअर नहीं है, वो नाइब डेप्टी डुअर है, राइट, नाइब फाइल है। लेकिन एडिशन आखिर में जो लेटर्स की है वो एग्जैक्टली वैसी है, सिर्फ आपका वॉवल पैटर्न चेंज हो रहा है, लाइक जो वॉवल हैं, लाइक दम्मा और फतहा आइन कलमा पे, या कसरा या दम्मा, उसकी जगह फतहा आ रही है। तो ठीक है, देखिए फर्स्ट लेटर पे आपका हमेशा आपका दम्मा है, यू तू, तो ऊ, उफ़ालू नुफ़ालू, और आइन कलमे पे हमेशा आपने फतहा रखनी है। तो नसरा से आपका यनसुरु बना, नसरा यनसुरु, एंड यनसुरु है आपका एक मालूम, मुदारे मालूम, तो उससे बन जाएगा युनसरु युफ़अलु। ठीक है, युनसरु। तो युनसरु, युनसरानी युनसरूना, तुनसरु तुनसरानी युनसरना, तुनसरु तुनसरानी तुनसरूना, तुनसरीना तुनसरानी तुनसरना, उनसरु नुनसरु। ठीक है, जब भी कभी आप दम्मा देख लें आप फर्स्ट लेटर पे, तो मोस्ट प्रोबेबली देयर फ्यू केसेस, लाइक जो हम आगे वाली कुछ वर्ड पढ़ेंगे तो वहाँ, लेकिन उनके अलावा दम्मा ऑन द फर्स्ट लेटर मोस्ट प्रोबेबली आपका वो मजहूल होगी। कोई फ्यू केसेस हैं जहाँ पे मालूम भी हो सकती है, लेकिन अभी हमने वो वाले स्केल नहीं पढ़े हैं। अभी जो हम स्केल पढ़ रहे हैं उसके लिहाज से आपने दम्मा अगर आपने देखी फर्स्ट लेटर के ऊपर, और फतहा देखी आपने आइन कलमे पे, तो वो आपका मजहूल का जो है वो स्केल होगा। ठीक है, क्लियर है।
इसमें कोई क्वेश्चन इसके अंदर? अब देखें ट्रांसलेशन में, ही वन मेल इज बीइंग हेल्प्ड, राइट, या ही विल बी हेल्प्ड, दे टू मेल आर बीइंग हेल्प्ड। अब हेल्प कौन कर रहा है, डूअर नहीं पता हमें, ठीक है। तो अब ये जो आपके प्रोनाउंस हैं वो आपके क्या बन गए, वो आपके नाइबुल फाइल हैं सारे के सारे, सब नाइबुल फाइल बन गए। शी वन फीमेल इज बीइंग हेल्प, या शी वन फीमेल इज हेल्प, या शी वन फीमेल विल बी हेल्प्ड। इसी तरह से आई एम बीइंग हेल्प्ड, आई विल बी हेल्प्ड, वी आर बीइंग हेल्प्ड, या वी विल बी हेल्प्ड, हमारी मदद की जाएगी, या इस तरह से। ठीक है, तो ये पूरा स्केल भी वही पैटर्न जो है फॉलो करता है। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कुरान से। सूरह गाफिर वर्स 40, युरज़क़ूना फीहा बिगैर हिसाब, देखिए ना, युरज़क़ू, रज़क़ यरज़ुक़ू, यरज़ुक़ू, युरज़क़ू। अब यरज़ुक़ू जो है आपका बन गया यफ़अलु, लेकिन युरज़क़ू दम्मा है ऑन द फर्स्ट लेटर, और जो आपका वो है, अब ये ऊना तो खैर एंड हुआ है आखिर में, लेकिन अगर ये बेसिकली युरज़क़ू होगा, ठीक है ना, युरज़क़ू से आपका जा जो है आपका सेकंड लास्ट लेटर है, इस पे फतहा है। तो बेसिकली इसके रूट लेटर्स क्या हैं, रा ज़ क़ा कह रहे हैं यहाँ पे, ये रूट लेटर्स हैं। तो युरज़क़ूना, तो दे विल बी प्रोवाइडेड। अब यरज़क़ू तो होता है कि ही प्रोवाइड, या ही इज़ गिविंग, राइट, ही इज़ प्रोवाइडिंग। लेकिन दे विल बी प्रोवाइडेड, अब यहाँ पे जो ये है, ये नाइबल फाइल है, डेप्टिक टू रही है, दे विल बी प्रोवाइडेड इन इट विदाउट एनी मेजर, या विदाउट एनी अकाउंट, लाइक बेहिसाब, उनको बेहिसाब मुहैया किया जाएगा, उन्हें बेहिसाब दिया जाएगा। तो युरज़क़ून फ़ीहा बगैर हिसाब, मैं हाल जन्नत के लिहाज से जिक्र होगा मेरा ख्याल है ये, जन्नतियों का, युरज़क़ून फ़ीहा बगैर हिसाब, दे विल बी प्रोवाइडेड इन इट विदाउट एनी अकाउंट। तो इन इट मेरा हाल है शायद ये जन्नत के लिहाज से बात होगी। तो युअरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम, युअरफु, देखिए ये सिंपल आ गई, हाँ। यारफु मालूम, युअरफु मजहूल, राइट, मुदारे मजहूल, क्योंकि या बता रहा है आपको कि ये मुदारे है, ठीक है ना, आता ही नहीं। अगर आपका कोई वर्ब इन तीन चार लेटर से स्टार्ट हो रही है, ता या नून या हमजा, बेसिकली मुदारे है, तो ये या से स्टार्ट हो रही है, तो ये मुदारे है, ठीक है, नंबर एक मुदारे है ये। नंबर टू, अब मालूम या मजहूल, तो क्योंकि ये या पे आपने देखा दम्मा है, और रा पे यानी कि आइन कलमे पे फतहा है, तो ये मजहूल है बेसिकली, ठीक है ना, तो मुदारे मजहूल युरफु। तो विल बी नोन, ठीक है ना, नाउ इट विल बी नोन, कौन विल बी नोन, मुजरिमूना। अब देखिए ये मुजरिमूना कौन है, ये नाइबुल फाइल है। मुजरिमूना का क्या स्टेटस है, रफा नसब या जर, ठीक है, ये रफा स्टेटस है ना, क्योंकि ऊना, हाँ, अब ये प्लूरल है, तो जमा जमा मुजक्कर सालिम है, तो ऊना का पैटर्न है, ऊना, मुजरिम ऊना, तो ये रफा स्टेटस है। और ईना, ईना जो होता है वो नसब जर होता है। तो रफा स्टेटस में या तो फाइल होता है या नाइबुल फाइल होता है, ठीक है। अब अगर आपकी वर्ब मालूम है वर्ब अगर आपकी, तो ये फाइल है। और अगर ये वर्ब आपकी जो है वो मजहूल है, यहाँ पे देखें मजहूल है हमारी, क्योंकि दम्मा लगा हुआ है इस पे शुरू में, और रा पे फतहा है, तो ये आपका नाइबुल फाइल है। तो द क्रिमिनल्स विल बी नोन, ठीक है ना, बाय देयर मार्क्स, बिसीमा बाय देयर मार्क्स। तो क्रिमिनल विल बी नोन, राइट, तो ये मजहूल में चला गया, पैसिव में चला गया आपका ये। कंपेयरिंग एक्टिव वर्सेस, अगेन जस्ट अनदर एग्जांपल। अब कंपेयर कैसे कर रहे हैं इसको हम, तो एक्टिव में क्या था आपका, आपका फेरुल मुदारे है या कुतुबु, फिर आपका जो है वो सब्जेक्ट है या डूअर अत्तालिबु, और फिर आपका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, बी एस, यकतुबु अत्तालिबु दरस, द स्टूडेंट राइट्स द लेटर। तो सिंपल एक्टिव मालूम आपको पता है, क्योंकि आपका जो वर्ब है आपकी, वो आपकी एक्टिव है या मालूम है, तो ये जो रफा स्टेटस में जो नाउन है उसके बाद वो आपका डूअर है या सब्जेक्ट है। तो द स्टूडेंट राइट्स, या विल राइट, या इज राइटिंग द लेसन, ये आपका मफूल या ऑब्जेक्ट हो गया। पैसिव में क्या होता है, सेम है जब हम मुदारे की बात कर रहे थे, तो पैसिव में जो मफूल होता है वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है, सॉरी, जो आपका मफूल होता है वो आपका सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट डूअर क्योंकि हमें अननोन होता है, तो इसमें भी क्या होगा, जब हम इसको यकतुबू से युक्तबू बनाएंगे, लाइक विद दम्मा ऑन द फर्स्ट लेटर एंड फतहा ऑन द आइन कलमा, युक्तबू, तो फिर डेफिनेटली डूअर जो है वो हमें अननोन होगा। ना अब कौन राइट कर रहा है, वी डोंट नो। और जो आपका मफूल है वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, और उस पर हमने दम्मा देनी है, क्योंकि सब्जेक्ट आपका क्या होता है, रफा स्टेटस में होता है, ठीक है, या नाइबुल फाइल के लेंथ को, तो फाइल और नाइबुल फाइल दोनों आपके रफा स्टेटस में होते हैं। तो युक्तबु दरसु, द लेसन इज रिटन, ये लेसन इज बीइंग रिटन, ये लेसन विल बी रिटन। तो इस तरह से किसी भी ट्रांसलेशन में डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट कुछ भी, द लेसन इज रिटन, या द लेसन इज बीइंग रिटन, द लेसन विल बी रिटन, ठीक है। नाउ हु इज राइटिंग द लेसन, वी डोंट नो, राइट, दैट्स अननोन, इट्स इररेलेवेंट। तो यहाँ पे जो आपका एम्फेसिस है वो आपका लेसन के ऊपर है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है उस पे, उसके ऊपर आपका एम्फेसाइज है।
ठीक है, तो एग्जैक्टली बिल्कुल जैसे आपका पहले मादी मजहूल था, एग्जैक्टली वही चीज़ है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, सेम सेम उसी तरह से उसी पैटर्न पर ये भी है। ठीक है, चलें कुछ एक्सरसाइज जो है वो देखते हैं। अच्छा जी, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, डिटरमिन वेदर ईच सेंटेंस इज इन दी एक्टिव पास्ट टेंस और पैसिव पास्ट टेंस। ठीक है ना, तो अदर आपका ये सॉरी पास्ट नहीं, ये प्रेजेंट, या तो ये प्रेजेंट एक्टिव प्रेजेंट होगा या आपका पैसिव प्रेजेंट होगा ना, यानी कि फ़ेल मुदारे मालूम और फ़ेल मुदारे मजहूल। ठीक है ना, तो इन सेंटेंसेस के अंदर आपने ये पहचानना है कि ये फ़ेल मुदारे मालूम है या फ़ेल मुदारे मजहूल है, क्या है। तो यखरुजु तिफलु मिनल बैती, तो उसको बताइए कि क्या है, ये फ़ेल मुदारे मालूम है या फ़ेल मुदारे मजहूल है, कौन सा लग रहा है आपको। ये फिर मुदारे मालूम है, ये मालूम है, यखरुजु। यखरुज, क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा फतह है और रॉ पे फतह, सॉरी यहाँ पे फतह है और रॉ पे फतह नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि अगर हम ये फालू का पैटर्न से पहचाने तो उस पर यहाँ पे दम्मा होती है और जो आइन कलमे पे फतह होती है, तो यहाँ देखे दोनों चीज़ें नहीं है, राइट। तो डेफिनेटली ये आपका क्या है, ये आपका फ़ेल मुदारे मालूम है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो अतिफ्लू है वो आपका कौन है, वो आपका डूअर है, सब डूअर है, सब्जेक्ट, हाँ सब्जेक्ट है। बिल्कुल सब्जेक्ट है आपका, डूअर है, ये आपका फाइल है। तो ट्रांसलेट कैसे करेंगे फिर इसको हम, The the द the चाइल्ड, child uh, is exited or is exiting हाँ चाइल्ड इज from the एग्जिटिंग, house. हाँ फ्रॉम दी हाउस, ठीक है ना, चाइल्ड इज एग्जिटिंग फ्रॉम दी हाउस, और ये द चाइल्ड विल एग्जिट है, किसी भी तरह से हम इसको बना या सकते विल भी हो जाएगा। हैं। ठीक है, युक्सरु जुजाजु, ये 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 फेलुल मुदारे मजहूल है ये। मजहूल है, ठीक है ना, ये पैसिव है क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस पे युक सरू, यहाँ पे दम्मा है और जो आइन कलमे पे फतहा है, युक सरू। ठीक है, तो इज बीइंग ब्रोकन, योर विल बी ब्रोकन, एंड अजुजाजू, तो ये अब आपका क्या है आपका, क्योंकि ये आपका फेलुल मुदारे मजहूल है, तो ये अजुजाजू आपका डेफिनेटली डेप्यूटी डूअर होगा ये, या नाइबुल फाइल होगा, या ये आपका ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, ठीक है, अजुजाजू, तो द ग्लास विल बी ब्रोकन या इज बीइंग ब्रोकन, ठीक है, तो इस तरह से इसकी भी ट्रांसलेशन होगी, इज बीइंग ब्रोकन या विल बी ब्रोकन या ग्लास इज ब्रोकन, सॉरी ग्लास भूल गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको बनाएंगे, यदरुसु तुल्लाबु अन्नहवा, ये ये एक्टिव है आपका, या मुदारे मालूम, ठीक है ना, या से पता चल रहा है ये मुदारे है, या दिया हुआ है तो मुदारे है डेफिनेटली, ठीक है, और यहाँ पे फतह है और रा पे कुछ भी हो सकता है, दम्मा फतह कसरा, तो यदरुसु अतुल्लाबु अन्नहवा, तो ये आपका फिर डूअर है या फाइल है या सब्जेक्ट है, ठीक है। सो द स्टूडेंट्स, प्लूरल है, द स्टूडेंट्स यदरुसु अन्नहवा, ठीक है ना, स्टडिंग या विल स्टडी द ग्रामर। युफ्ताहुल बाबू, ये मजहूल है। ये मजहूल, ठीक है फेल या, मुजारे मजहूल। हाँ फिल्म दारे मजहूल, क्योंकि ये यहाँ पे दम्मा और ता पे ये जो आइन कलमा है उसमें फतहा, और अल बाबू इसका मतलब है अब हमारा ये नाइबुल फाइल होगा, ठीक है ना, यानी इसमें डोर अननोन। सो द डोर, ट्रांसलेशन कैसे बन जाएगी इसकी, द डोर, द डोर इज ओपन और इज या हाँ विल बी ओपन। हाँ, द डोर इज ओपन या बीइंग ओपन या विल बी ओपन, ठीक है, कुछ भी किसी भी तरह से। युफ्ताहुल बाबू कुल्ला यौम, ये भी फेल मुदारे मजहूल है ये। ये भी पैसिव है क्योंकि युफ्ताहु, ठीक है ना, सेम थिंग, युफ्ताहुल बाबू कुल्ला यौमिन, तो इसको ट्राई ट्राई करें ट्रांसलेशन से, द द डोर, डोर विल बी ओपन ऑल द टाइम, ऑल डेज, कुल्ला योमिन, हाँ कुल एवरी डे, उसको ऑल एवरी नहीं, डे हाँ है। एवरी डे, ठीक है। मोर मोर प्रैक्टिस, कन्वर्ट दी पैसिव वॉइस, कन्वर्ट टू पैसिव वॉइस, चेंज द फॉलोइंग एक्टिव सेंटेंसेस इनटू पैसिव सेंटेंसेस, अब इनको पैसिव बनाना है हमें, तो यकतुबुल मुअल्लिमुल किताबा, ठीक है, तो अब क्योंकि यकतुबु है ये आपका मुदारे मालूम है, तो द टीचर इज राइटिंग द बुक, ये आपका एक्टिव है, हाँ, इसको हम पैसिव बनाएं, युक्तबु, हाँ युक्तबु, युक्तबुल किताबु। हाँ युक्तबुल किताबु, ठीक है ना, ये आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बिकम्स सब्जेक्ट, तो युक्तबुल किताबु मीनिंग क्या बन गया इसकी, द बुक, विल बी रिटन, हाँ द बुक विल बी रिटर्न कह सकते हैं बिल्कुल, द बुक, इज रिटन हाँ इज और इज रिटर्न, बीइंग विल बी रिटन। रिटर्न, बिल्कुल ठीक, या इज बीइंग रिटर्न, इज बीइंग, विल बी, इस तरह से क्लियर,
यफ्तहुल्लाहुल बाबा, अल्लाह ओपन द डोर, राइट? तो इसको पैसिव बनाए। युफ य- युफ य- हाँ हाँ, यफ्ताहुल बाबू। युफ्ता ताहुल बाबू। बाबू, ठीक है ना, युफ्ताहुल बाबू। द डोर इज ओपन, द डोर विल बी ओपन, द डोर इज बीइंग ओपन, राइट? इस तरह से इसकी ट्रांसलेशन आपकी हो जाएगी। इसके साथ विल बी या इज बीइंग, युफ्ताहुल बाबू, और ये आपका नाइबुल फाइल है, या सब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन गया, नाइबुल फाइल है। यक़रअु तालिबुल कुरआन, युक़रउल कुरआन। यक़रअु, कुरान। कुरानु। हाँ, यक़रअुल कुरआन। So the Quran is being read, the Quran will be read, इस तरह से आपके इसको यस्माउन नासुल खबरा, the people heard the news, the people युस्मा is the people will hear the news. युस्माउल खबरु। खबरु। युस्माउल खबर, खबरु। so the news will be heard, ठीक है? तो ये सरल हो जाएगा, the news is heard, the news is being heard, the news will be heard. यदरुसु तुल्लाबुन नहवा, युद युद युद्रसुन नहवु। युदरसुन रसूल नहवु, नहवु। ठीक है, ठीक है। So the grammar is being studied, the grammar will be studied, the grammar is studied. यक़रअुल मुअल्लिमुल क़िस्सा, युक़रउल क़िस्सतु। यक़रअुल क़िस्सा, तो ठीक है ना? The teacher is reading the story. यक़रअुल क़िस्सतु, the story is being read. ये ना कौन रीड कर रही है मालूम है? The story is being read, या will be read and all those.